यहेजकेल 45-46 चैप्टर, एजेकियल 45-46 चैप्टर, यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 45-46 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एजेकियल 45 चैप्टर 46 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमें वचन के अंदर फिट एंड फिक्स कर रहा है, तो हमारी समझ ज्ञान बुद्धि को खोलकर हमें परमेश्वर के भेद रहस्य सिखा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के अंदर से हमारी उन्नति कर और हमारा विश्वास बढ़ा, हमारी मजबूती लेकर आ, ताकि हम परमेश्वर के लाभ के लिए काम कर सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। Chapter 45, the portion of land for the sanctuary and city. First verse. Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall offer an oblation unto the Lord, an holy portion of the land. The length shall be the length of 25,000 reeds, and the breadth shall be 10,000. This shall be holy in all the borders thereof round about. Of this there shall be for the sanctuary 500 in length with 500 in breadth, square round about, and 50 cubits round about for the suburbs thereof. And of this measure shalt thou measure the length of 25,000 and the breadth of 10,000, and in it shall be the sanctuary and the most holy place. The holy portion of the land shall be for the priests, the ministers of the sanctuary, which shall come near to minister unto the Lord, and it shall be a place for their houses and an holy place for their sanctuary. And the 25,000 of length and the 10,000 of a breadth shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves for a possession for 20 chambers. And ye shall appoint the possession of the city 5,000 broad and 25,000 long over against the oblation of the holy portion. It shall be for the whole house of Israel, and a portion shall be for the prince on the one side, and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the possession of the city before the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from the west side westward, and from the east side eastward. And the length shall be over against one of the portions, from the west border unto the east border. In the land shall be his possession in Israel, and my princes shall no more oppress my people, and the rest of the land shall they give to the house of Israel according to their tribes. Thus saith the Lord God, let it suffice you, O princes of Israel. Remove violence and spoil, and execute judgment and justice. Take away your exactions from my people, saith the Lord God. Ye shall have just balances, and a just abha, and a just bath. The abha and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the 10th part of an homer, and the abha the 10th part of an homer. The measure thereof shall be after the homer. And the shekel shall be 20 gerahs. 20 shekels, 5 and 20 shekels, 15 shekels shall be your money. This is the oblation, that ye shall offer the 6th part of an abha of an homer of wheat, and ye shall give the 6th part of an abha of an homer of barley. Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the 10th part of a bath out of the core which is in
an homer of 10 baths, for 10 baths are an homer. And one lamb out of the flock, out of 200, out of the fat pastures of Israel, for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them, saith the Lord God. All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel, and it shall be the prince's part to give burnt offerings and meat offerings and drink offerings in the feasts and in the new moons and in the Sabbaths, in all solemnities of the house of Israel. He shall prepare the sin offering, the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel. Thus saith the Lord God, in the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary. And the priest shall take off the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court. And so thou shalt do the 7th day of the month for every one that erreth, and for him that is simple, so shall ye reconcile the house. In the first month, in the 14th day of the month, ye shall have the Passover, a feast of 7 days. Unleavened bread shall be eaten, and upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering. And 7 days of the feast he shall prepare a burnt offering to the Lord, 7 bullocks and 7 rams without blemish, daily the 7 days, and a kid of the goats daily for a sin offering. And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah. In the 7th month, in the 15th day of the month, shall he do the like in the feast of the 7 days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil. Chapter 46, Ordinances for Public Worship. First verse say, Thus saith the Lord God, the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days, but on the Sabbath it shall be opened, and in the day of the new moon it shall be opened. And the prince shall enter by the way of the porch of that gate without, and shall stand by the post of the gate, and the priest shall prepare his burnt offering and his peace offerings, and he shall worship at the threshold of the gate. Then he shall go forth, but the gate shall not be shut until the evening. Likewise, the people of the land shall worship at the door of this gate before the Lord in the Sabbaths and in the new moons. And the burnt offering that the prince shall offer unto the Lord in the Sabbath day shall be 6 lambs without blemish, and a ram without blemish. And the meat offering shall be an ephah for a ram, and the meat offering for the lambs, as he shall be able to give, and an hin of oil to an ephah. And in the day of the new moon it shall be a young bullock without blemish, and 6 lambs and a ram they shall be without blemish. And he shall prepare a meat offering on an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and for the lambs according as his hand shall attain unto, and an hin of oil to an ephah.
And when the priest shall enter, he shall go in by the way of the porch of that gate, and he shall go forth by the way thereof. But when the people of the land shall come before the Lord in the solemn feasts, he that entereth in by the way of the north gate to worship shall go out by the way of the south gate, and he that entereth by the way of the south gate shall go forth by the way of the north gate. He shall not return by the way of the gate whereby he came in, but shall go forth over against it. And the prince in the midst of them, when they go in, shall go in, and when they go forth, shall go forth. And in the feasts and in the solemnities, the meat offering shall be in an ephah to a bullock, and an ephah to a ram, and to the lambs as he is able to give, and an hin of oil to an ephah. Now when the prince shall prepare a voluntary burnt offering or peace offering voluntarily unto the Lord, one shall then open him the gate that looketh toward the east, and he shall prepare his burnt offering and his peace offerings as he did on the Sabbath day. Then he shall go forth, and after his going forth, one shall shut the gate. Thou shalt daily prepare a burnt offering unto the Lord of a lamb of the first year, without blemish thou shalt prepare it every morning. And thou shalt prepare a meat offering for it every morning, the sixth part of an ephah, and the third part of an hin of oil, to temper with the fine flour, a meat offering continually by a perpetual ordinance unto the Lord. Thus shall they prepare the lamb and the meat offering and the oil every morning for a continual burnt offering. Thus saith the Lord God, if the prince give a gift unto any of his sons, the inheritance thereof shall be his sons, it shall be their possession by inheritance. But if he gave a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be his to the year of liberty. After it shall return to the prince, but his inheritance shall be his sons for them. Moreover, the prince shall not take of the people's inheritance by oppression to thrust them out of their possession, but he shall give his sons inheritance out of his own possession, that my people be not scattered every man from his possession. After he brought me through the entry which was at the side of the gate into the holy chambers of the priests, which looked toward the north, and behold, there was a place on the two sides westward. Then said he unto me, This is the place where the priests shall boil the trespass offering and the sin offering, where they shall bake the meat offering, that they bear them not out into the utter court to sanctify the people. Then he brought me forth into the utter court, and caused me to pass by the four corners of the court, and behold, in every corner of the court there was a court. In the four corners of the court there were courts joined of 40 cubits long and 30 broad. These four corners were of one measure, and there was a row of building round about them four, and it was made with boiling places under the rows round about. Then said he unto me, These are the places of them that boil, where the ministers of the house shall boil the sacrifice of the people. हिंदी में पढ़ेंगे हम। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 45 अध्याय 46 अध्याय। Ribanta shakiamba rakosi halar baha kasian to kambasa berekatin raba akasiatul raha hadetkin ba ashkar khatin rabahandra halar baha kasa न बल से न ताकत से तेरे आत्मा के द्वारा तूने हमको अभिषेक किया है, हमारे जीवन बदल दिए हैं, हमें फिट एंड फिक्स किया है।
ईश्वरीय रचना में हमको लाया है, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर, हम वचनों को समझ सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 45 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं, पहले वचन से। देश की भूमि में परमेश्वर का भाग। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों के 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इसराइल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान के लिए भूमि, प्रधान का निज भाग, पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर, अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इसराइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इसराइल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। प्रधान के लिए नियम। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इसराइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब में हो। शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इसराइल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसराइल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर वो नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इसराइल के घरानों के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इसराइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। पर्व 18 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों ओर, चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो, उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना।
इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे, वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करके, अर्थात हर एक दिन 7 निर्दोष बछड़े और 7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। प्रधान और पर्व 46 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढ़े का हो। अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढ़े के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक एपा अन्न बलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए, वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले। पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उनके लिए खोला जाए और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन की भेंट 13 वचन से आगे। प्रतिदिन तो वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल के तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। प्रधान और भूमि का भाग। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उनकी निज भूमि से छीना हो।
अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाए। मंदिर के रसोई घर 19 वचन से आगे। फिर वह मुझे फाटक के एक ओर के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिमी और के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतर चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए वे ये ही है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ सही समय में पूरा करने वाला परमेश्वर हो। आपकी दया अनुग्रह हमारे साथ है। हमारा जीवन बदलता जाने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हो। हमारे आनंद और शांति में एक ऊंचे स्तर प्राप्त करने का अनुग्रह आप हमें दे रहे हो। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी मनोकामना, हमारे मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हो। बदल बदल कर रास्ते दे रहे हो। आपका बहुत धन्यवाद पिता। आई लव यू आबा। आई लव यू जीसस। I love you, Abba Father। कैसा प्यार आपने हमसे रखा है खुदा। सारे सृष्टि का निर्माण करता हमसे प्रेम रखता है। यह बड़ी धन और दौलत है हमारी कि आप हमारे जीवन में मौजूद हो पिता। आपको सराहने के अलावा हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता खुदा। थैंक यू फादर। आपके काम करें हम, आपके लिए लाभदायी बने हम, आपके लिए फायदेमंद हो जाए हम, आपके लिए अर्पण हो जाए हमारा सब कुछ, आपके राज्य में हो जाए। नासरी यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों के अंदर हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पवित्र आत्मा। हमारी विनती सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। आज हमें 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में ये है जॉन 16 चैप्टर 23 वर्स से 33 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 3 चैप्टर 4 चैप्टर। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में आज हमें मिला है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 वचन से 33 वचन, दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय। हम अकेले में बैठकर ये वचनों को, अध्यायों को पढ़ना है। जब अकेले में पढ़ेंगे परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। उसको जो चाहिए वो पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। और जैसा ही वो परमेश्वर हमें चाहता है उस व्यक्तिमत्व में, पर्सनालिटी में हमें वचनों के द्वारा ढलता जाएगा, उसके लिए लाभदायी बनाएगा। यही होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में लाभदायी बनने वाला चरित्र प्राप्त करते जाएंगे। इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम व्यक्तिगत रूप से इसे पढ़ते रहेंगे। ओके, अगर आप इसे अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके, ये हमने अपनी ओर से फैसला किया है कि हम इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ समझाए, सिखाए और सुधार करे। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है ये व्यक्तिगत रूप में पढ़ने का। ठीक है, हमारे पर्सनल टाइम में पढ़ने का इतना ही मकसद है कि परमेश्वर चाहता है उस तरीके का इंसान वो हमें बना सके। आमीन। यही होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है।
वही प्रकार से हमें परमेश्वर का आत्मा बनाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, हमने उसका लाभ लेना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का, सच्चाई का, पवित्र आत्मा का हमने लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह निश्चित हमें इसका लाभ लेने के लिए सहायता कर रहा है। हमने निश्चित पवित्र आत्मा का लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन।